May or might. May is used for higher possibilities and formal permission. May का उपयोग उच्च संभावनाओं और औपचारिक अनुमति के लिए होता है. Might is used for lower possibilities, polite suggestions, and hypothetical situations. Might का उपयोग कम संभावनाओं, विनम्र सुझावों और काल्पनिक स्थितियों के लिए होता है. 1. Expressing possibility. संभावना व्यक्त करना. May and might are both used to express possibility. May is used when the possibility is higher, while might is used when the possibility is lower. May और might दोनों का उपयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है. May का उपयोग तब होता है जब संभावना अधिक होती है, जबकि might का उपयोग तब किया जाता है जब संभावना कम होती है. Possibility with May. It may rain today. आज बारिश हो सकती है. Possibility with might. It might rain today. आज शायद बारिश हो सकती है. 2. Asking for permission. अनुमति मांगना. May is commonly used to ask for or give permission, though might is less commonly used in this context and sounds more formal. May का उपयोग सामान्यतः अनुमति मांगने या देने के लिए किया जाता है, जबकि might का उपयोग कम किया जाता है और यह अधिक औपचारिक लगता है. Permission with May. May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Permission with might. Rare. Might I suggest an alternative? क्या मैं एक विकल्प सुझा सकता हूँ? 3. Offering polite suggestions. विनम्र सुझाव देना. Might can be used to offer polite suggestions or hypothetical recommendations. Might का उपयोग विनम्र सुझाव देने या काल्पनिक अनुशंसा करने के लिए किया जा सकता है. Suggestion with might. You might want to reconsider your decision. तुम अपनी निर्णय पर दोबारा विचार कर सकते हो. 4. Speculating about the past. अतीत के बारे में अटकल लगाना. Might is used when speculating about something that could have happened in the past. Might का उपयोग तब किया जाता है जब हम अतीत में कुछ होने की संभावना की अटकल लगाते हैं. Speculation with might. He might have forgotten to call you. वह शायद तुम्हें फोन करना भूल गया होगा. 5. Offering permission. Formal. अनुमति देना, औपचारिक. May is often used in formal situations to give someone permission. May का उपयोग औपचारिक परिस्थितियों में किसी को अनुमति देने के लिए किया जाता है. Permission with May. You may leave the room now. अब आप कमरे से जा सकते हैं. 6. Hypothetical or unlikely events. काल्पनिक या असंभव घटनाएं. Might is used for events that are more hypothetical or unlikely. Might का उपयोग उन घटनाओं के लिए किया जाता है जो अधिक काल्पनिक या असंभव होती हैं. Hypothetical event with might. If I had more time, I might learn to play the guitar. अगर मेरे पास ज्यादा समय होता, तो शायद मैं गिटार बजाना सीखता. 7. Expressing doubt or uncertainty. संदेह या अनिश्चितता व्यक्त करना. Might is often used when you are unsure about something. Might का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी चीज के बारे में अनिश्चित होते हैं. Doubt with might. She might not come to the party. वह शायद पार्टी में न आए. 1. Expressing possibility with may and might. संभावना व्यक्त करना. Examples with may, higher possibility. She may visit us next week. वह हमें अगले हफ्ते मिल सकती है. It may snow tomorrow. कल बर्फ गिर सकती है. I may need your help later. मुझे बाद में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है. We may go to the beach this weekend. हम इस सप्ताहांत समुद्र तट पर जा सकते हैं. He may be at work now. वह अब काम पर हो सकता है. The package may arrive today. पैकेज आज आ सकता है. She may be busy right now. वह अभी व्यस्त हो सकती है. They may have already left. वे शायद पहले ही निकल गए होंगे. The movie may start soon. फिल्म जल्दी शुरू हो सकती है. I may see him at the party tonight. मैं उसे आज रात पार्टी में देख सकता हूँ. Examples with might, lower possibility. He might come to the meeting. वह शायद मीटिंग में आ सकता है. They might call you later. वे शायद तुम्हें बाद में कॉल कर सकते हैं. The train might be delayed. ट्रेन देर हो सकती है. We might cancel the trip. हम यात्रा रद्द कर सकते हैं. She might not know about the event. उसे शायद इस कार्यक्रम के बारे में पता न हो. It might rain this evening. शाम को शायद बारिश हो सकती है. He might be sleeping now. वह शायद अब सो रहा होगा. They might move to another city.
वे शायद किसी और शहर में जा सकते हैं। द कॉन्सर्ट माइट गेट कैंसल्ड। संगीत कार्यक्रम रद्द हो सकता है। शी माइट हैव फॉरगॉटन द कीज। वह शायद चाबियां भूल गई हो। 2. आस्किंग फॉर परमिशन विथ मे एंड माइट। अनुमति मांगना। एग्जाम्पल्स विद मे, आस्किंग फॉर परमिशन। मे आई सिट हियर? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई बोरो योर बुक? क्या मैं तुम्हारी किताब उधार ले सकता हूँ? मे आई लीव अर्ली टुडे? क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ? मे वी गो आउटसाइड? क्या हम बाहर जा सकते हैं? मे आई यूज योर फोन? क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मे आई टेक अ डे ऑफ टुमारो? क्या मैं कल छुट्टी ले सकता हूँ? मे वी एंटर द रूम नाउ? क्या हम अब कमरे में प्रवेश कर सकते हैं? मे आई जॉइन यू फॉर डिनर? क्या मैं तुम्हारे साथ डिनर में शामिल हो सकता हूँ? मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? एग्जाम्पल्स विद माइट, फॉर्मल परमिशन और सजेशन। माइट आई सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव? क्या मैं एक विकल्प सुझा सकता हूँ? माइट वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक? क्या हम थोड़ी देर का ब्रेक ले सकते हैं? माइट आई आस्क फॉर योर एडवाइस? क्या मैं आपकी सलाह मांग सकता हूँ? माइट वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ? क्या हम अब मीटिंग शुरू कर सकते हैं? माइट आई प्रपोज अ न्यू प्लान? क्या मैं एक नई योजना का प्रस्ताव कर सकता हूँ? माइट आई ऑफर अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? क्या मैं इस समस्या का समाधान पेश कर सकता हूँ? माइट वी कंसिडर अ डिफरेंट ऑप्शन? क्या हम एक अलग विकल्प पर विचार कर सकते हैं? माइट आई शेयर माई ओपिनियन? क्या मैं अपनी राय साझा कर सकता हूँ? माइट वी डिले द प्रोजेक्ट बाय अ वीक? क्या हम परियोजना को एक हफ्ते के लिए टाल सकते हैं? माइट आई रिक्वेस्ट अ मीटिंग विद यू टुमारो? क्या मैं कल आपके साथ एक मीटिंग का अनुरोध कर सकता हूँ? 3. ऑफरिंग पोलाइट सजेशंस विद माइट। विनम्र सुझाव देना। एग्जाम्पल्स विद माइट, पोलाइट सजेशंस। You might want to check the weather before you leave. तुम्हें जाने से पहले मौसम की जांच कर लेनी चाहिए। You might want to take an umbrella with you. तुम्हें अपने साथ छाता ले जाना चाहिए। You might want to reconsider your decision. तुम्हें अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए। You might want to start studying earlier. तुम्हें पहले से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। You might want to apologize for being late. तुम्हें देर से आने के लिए माफी मांगनी चाहिए। You might want to consult a doctor. तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। You might want to back up your files. तुम्हें अपनी फाइलों का बैकअप लेना चाहिए। You might want to arrive a bit earlier. तुम्हें थोड़ी जल्दी आ जाना चाहिए। You might want to double check the schedule. तुम्हें शेड्यूल को फिर से जांच लेना चाहिए। You might want to save some money for emergencies. तुम्हें आपातकाल के लिए कुछ पैसे बचाने चाहिए। 4. Speculating about the past with might. अतीत के बारे में अटकलें लगाना। Examples with might. Speculating the past. He might have left already. वह शायद पहले ही जा चुका होगा। She might have forgotten the meeting. वह शायद मीटिंग भूल गई होगी। They might have lost their way. वे शायद रास्ता भटक गए होंगे। We might have missed the last train. हमने शायद आखिरी ट्रेन छूट गई होगी। He might have misunderstood the instructions. वह शायद निर्देशों को गलत समझा होगा। She might have fallen asleep early. वह शायद जल्दी सो गई होगी। They might have decided not to come. उन्होंने शायद न आने का फैसला किया होगा। We might have made a mistake. हमसे शायद गलती हो गई होगी। He might have sent the email to the wrong person. उसने शायद ईमेल गलत व्यक्ति को भेजा होगा। She might have taken the wrong bus. वह शायद गलत बस में चढ़ गई होगी। 5. ऑफरिंग परमिशन, फॉर्मल, विद मे। अनुमति देना, औपचारिक। एग्जाम्पल्स विद मे, ऑफरिंग परमिशन फॉर्मली। यू मे लीव द ऑफिस अर्ली टुडे। आप आज ऑफिस से जल्दी जा सकते हैं। यू मे बिगिन द प्रेजेंटेशन नाउ। अब आप प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। छात्र शुक्रवार तक अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। You may take a seat. आप बैठ सकते हैं। Employees may take a break after 1 p.m. कर्मचारी 1 बजे के बाद ब्रेक ले सकते हैं। You may use the conference room for your meeting. आप अपनी मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम का उपयोग कर सकते हैं। You may park your car here. आप अपनी कार यहाँ पार्क कर सकते हैं।
You may proceed with the project after approval. आप परियोजना को मंजूरी के बाद आगे बढ़ा सकते हैं. You may enter the premises after showing your ID. आप अपनी ID दिखाने के बाद परिसर में प्रवेश कर सकते हैं. Students may ask questions after the lecture. छात्र व्याख्यान के बाद सवाल पूछ सकते हैं. 6. Hypothetical or unlikely events with might. काल्पनिक या असंभव घटनाएं. Examples with might, hypothetical or unlikely events. If I had more time, I might visit my grandparents more often. अगर मेरे पास अधिक समय होता, तो मैं अपने दादा दादी से अधिक बार मिलने जाता. If we had enough money, we might buy a new house. अगर हमारे पास पर्याप्त पैसे होते, तो हम एक नया घर खरीद सकते थे. If it weren't raining, we might have gone for a walk. अगर बारिश नहीं हो रही होती, तो हम टहलने जा सकते थे. If she knew about the event, she might have attended. अगर उसे इस कार्यक्रम के बारे में पता होता, तो वह शामिल हो सकती थी. If I were you, I might not take that risk. अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो शायद वह जोखिम नहीं लेता. If I had studied harder, I might have passed the exam. अगर मैंने अधिक मेहनत से पढ़ाई की होती, तो शायद मैं परीक्षा पास कर लेता. If we had more resources, we might have completed the project on time. अगर हमारे पास अधिक संसाधन होते, तो हम समय पर परियोजना पूरी कर सकते थे. If they had left earlier, they might have caught the train. अगर वे पहले निकल गए होते, तो वे ट्रेन पकड़ सकते थे. If she had brought her umbrella, she might not have gotten wet. अगर वह अपना छाता लाई होती, तो शायद वह भीगती नहीं. If I had known about the sale, I might have bought the shoes. अगर मुझे बिक्री के बारे में पता होता, तो शायद मैंने जूते खरीद लिए होते. 7. Expressing doubt or uncertainty with might. संदेह या अनिश्चितता व्यक्त करना. Examples with might, expressing doubt or uncertainty. He might not arrive on time. वह समय पर नहीं आ सकता है. She might not be interested in the offer. वह इस प्रस्ताव में रुचि नहीं ले सकती है. They might not come to the meeting. वे मीटिंग में नहीं आ सकते हैं. The weather might not be good tomorrow. कल मौसम अच्छा नहीं हो सकता है. I might not have enough money for the trip. मेरे पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो सकते हैं. She might not have received the email. उसे ईमेल प्राप्त नहीं हुआ हो सकता है. He might not want to join us for dinner. वह हमारे साथ डिनर में शामिल नहीं होना चाह सकता है. The train might not leave on time. ट्रेन समय पर नहीं चल सकती है. I might not be able to attend the event. मैं इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता हूँ. We might not find the answer today. हमें आज उत्तर नहीं मिल सकता है.